Matrix and determinant. Matrix is an array where some elements are arranged in rows and columns. A is equal to Aij m cross n, where m denote number of rows and n denote number of columns. A11, A12 up to A1n. First row, first column, first row, second column, first row, nth column. A21, second row, first column, second row, second column, second row, nth column. Up to AM1, mth row, first column, mth row, second column, up to mth row, nth column. For example, 1 2 1 2 3 1. There are 2 rows and 3 columns. 2 cross 3 is the order of the matrix. M cross n means m rows and n columns. This is order of matrix. Now types of matrix. If there are single row, then matrix is called row matrix. If there is only single column, then matrix is called column matrix. Number of rows is equal to number of column, then matrix is called a square matrix. Now we see equivalent of matrix. Two matrices are equivalent if their corresponding elements are equal. That means if we compare corresponding element, then y is equal to 5, z is equal to 3, x is equal to 2. By this we can find the value of unknowns by comparison. X is equal to diagonal to 4 minus 5. That means this is the diagonal matrix. Only diagonal elements are there, other elements are 0. Minus 3 16, only diagonal elements are there. We have to find x plus 2y. We multiply 2 with all element of y, then we get this matrix. This is also diagonal matrix. A is equal to this matrix and B is this matrix. We have to verify that A multiplied by B whole dash means transpose is equal to B transpose multiplied by A transpose. Transpose means we convert rows into column. At first we see multiplication of A into B. First row multiply by first column with corresponding element. This is the process. Second element multiply by second element of column, first column. First row, first column, we get this. First row, second column, we get this. First row, third column, we get this. Similarly, second row, first column, we get this. Second row, second column, we get this. Second row, third column, we get this. Similarly, third row, first column, third row, second column, and third row, third column. Multiply corresponding element and add them, we get A into B. This is A into B. By transposing, we get this AB whole transpose. That means we convert rows into column. Now B dash into A dash. That means transpose of B multiply by transpose of A with the same process that I explained before. We get B dash into A dash. So this proved. Now we see determinant. Determinant, by the help of determinant we can find the value of this form A into D minus B into C. This is of 2 order. For 3 order there is a Saras rule. This is the 3 order determinant. We repeat these 2 column again, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Now see what is the process. In this form, A1, B2, C3 plus B1, C2, A3 plus C1, E2, B3 and subtract B1, E2, C3 plus A1, C2, B3 plus C1, B2, A3. By this process, we get the value of determinant. Now evaluate
this 2 cross 2 order determinant 5 into 3 minus in bracket 4 into minus 2. We get this. For 3 order we use Saras rule that we explained just before. 3 into 2 into minus 1 plus minus 2 into 1 into 0 plus 4 into 1 into 1. Put this in a bracket minus minus 2 into 1 into minus 1, 3 into 1 into 1, 4 into 2 into 0. We get the value of 3 order determinant. This properties, if 2 row 2 column are same, the value of determinant is 0. See this example. In this we R1 change to R1 minus 3 into R3, R2 change to R2 minus 2 into R3. दैट मीन्स थर्ड रो में 2 को मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सेकेंड रो में चेंज करेंगे. थर्ड रो को 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये चेंज आएगा फर्स्ट रो में. ठीक है. कोई दूसरे ऑपरेशन भी आप अप्लाई कर सकते हो. बाय यूजिंग दिस वी गेट कन्वर्टेड determinant and we take common 8 from the first row. We see 2 rows are similar, that's why the value of determinant is 0. Find the value of this determinant. This is another process to find the determinant. Every element take a sign plus minus plus, put 3, hide this row and this column. 2 multiply by minus 1, minus 1 into 1. This we get. Now use minus 1, hide this row, this column, minus 2 into minus 1 and 4 into 1. Now 0 and hide this column, this row, minus 2 into 1, minus 4 into 2. This is the value of determinant. This is another process other than Saras method. Using properties, we have to prove this. Here we see R1 change to R1 plus R2 plus R3. We can use any type of operation. Then we get this. Take common A plus B plus C. Then we get this. C2 change to C2 minus C1. C3 change to C3 minus C1. ऐसा करने से आपको 2 0 मिल जाएंगे. डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको ये 0 वाला पार्ट सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आप ये 1 कंसीडर करोगे. करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हाइड करोगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू आपको मिल जाएगी. ये प्रूफ हो गया. अब हमको प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट देखना है. प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट से अलग होता है ना. डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, देखिए. इसमें आप इसका स्क्वायर फाइंड करना है, सेम डिटर्मिनेंट को सेम डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना है. इसके लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे, 0 इंटू 0, सी इंटू सी सी स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, और ऐड कर दोगे. ठीक है. फिर उसके बाद फिर से फर्स्ट रो और सेकेंड रो के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 इंटू सी, सी इंटू 0 एंड बी इंटू ए, तो बी ए आपको मिलेगा. फिर से देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू बी, सी इंटू ए, सी ए आ जाएगा, और बी इंटू 0 0. तो फर्स्ट रो आपको मिल गई. अब देखिए सेकेंड रो कैसे मिलेगी. सेकेंड रो को फर्स्ट सेकेंड रो को आपको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो से, सी इंटू 0, 0 इंटू सी, बी इंटू ए, वी गेट ए बी. फिर से सेकेंड रो को सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करना है. सी इंटू सी सी स्क्वायर और ए इंटू ए स्क्वायर, बीच वाला क्या है 0.
फिर सेकेंड रो, फिर आप कंसीडर करोगे सेकेंड रो एंड थर्ड रो, सी इंटू बी सी बी, ये और ये क्या हो जाएंगे ज़ीरो, तो ये आ गया आपका सी बी। इस तरीके से सेकेंड रो मिल गई, फर्स्ट रो मिल चुकी थी। अब थर्ड रो के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थर्ड रो फर्स्ट के साथ में, थर्ड रो सेकंड के साथ में, थर्ड रो थर्ड के साथ में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब क्रेमर रूल, क्रेमर रूल ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड वाले 3 वेरिएबल के इक्वेशन है, 2 वेरिएबल की भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये क्रेमर रूल की प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख दिया 1 3 5 -3 1 1 एंड 1 1 3। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद में इसको डेल्टा से डिनोट कर दिया। अब आपको बताते हैं कि डेल्टा वन क्या है। डेल्टा वन पता लगाने के लिए आपको देखना पड़ेगा, जो फर्स्ट कॉलम है आपके डिटर्मिनेंट का कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, इसको रिप्लेस कर दो राइट साइड के एलिमेंट से। राइट साइड के एलिमेंट क्या हैं आपके 2 6 3, तो 2 6 3 से आप इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, 263 से आपने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया फर्स्ट वाले कॉलम को। बाकी सब वही एंट्री है जो पहले थी आपकी, और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया डिटर्मिनेंट फाइंड करने के तरीके से, तो ये डेल्टा वन मिल जाएगा। फिर से आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स लोगे और सेकेंड वाले कॉलम को रिप्लेस कर दिया, ये राइट साइड के एलिमेंट है 263। ठीक है, वैसे डेल्टा थ्री पता लगाने के लिए थर्ड वाले कॉलम को 263 से आपने रिप्लेस कर दिया। ऐसा रिप्लेसमेंट करने के बाद में आपको डेल्टा टू और डेल्टा थ्री पता चलेगा। अब एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं, डेल्टा वन डिवाइडेड बाय डेल्टा, ये वैल्यूज़ को डिवाइड कर दो, डेल्टा टू को डेल्टा से डिवाइड करोगे वाई आ जाएगा, वैसे ही डेल्टा थ्री को डेल्टा से डिवाइड करोगे तो जेड आ जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे क्रेमर रूल बताया वैसे ये एक डिफरेंट प्रोसेस है। इसमें आप ये वाला कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखोगे 1 2 2 1 5 1 1, जेड का कोफिशिएंट 1 है, 1 7 -1, और एक्स वाई जेड इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 × 1 का मैट्रिक्स है। जब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो से इक्वल होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। ये मैट्रिक्स इक्वेशन है आपके क्वेश्चन की। और अब इसको आप ए एक्स, इसको ए, इसको एक्स और इसको बी लिख सकते हो, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। ठीक है, अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपको पहले ही बता चुके हैं। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए सारे एलिमेंट के एडजॉइंट निकालना पड़ेंगे। ए वन वन का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो भी एलिमेंट लिखा था उसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो एक बात ध्यान रखिए, जैसे मैं ए वन वन लिख रहा हूँ तो -1 टू द पावर आपको 1 + 1 लिखना है। ठीक है, ए वन टू मतलब -1 टू द पावर 1 + 2 आएगा इधर पे। ठीक है, ए वन थ्री मतलब -1 टू द पावर 1 + 3। अब आप देखिए, ये फाइंड वही तरीके से करते हैं जैसा डिटर्मिनेंट में करते थे। एक बार आपको बता देते हैं हम ए वन वन के लिए। जैसे ए वन वन का मतलब है कि इस ये वाले टर्म के लिए आप एडजॉइंट नंबर निकाल रहे हो, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम आपने हाइड किया, छुपा लिया। 5 × -1 कितना होता है, -5। 7 × 1 कितना होता है, 7। -5 और -7 कितना हो जाएगा, -12। अब आप देखना -12 आएगा। ठीक है, ये प्लस होता यदि ऑड पोजीशन होती, -1 टू द पावर 1 + 1, जब भी -1 के पावर में इवन नंबर आता है टोटल में तो +1 आता है, -1 के पावर में ऑड नंबर आता है, जैसे इधर ऑड आएगा 1 + 2, ये 1 + 2 आएगा इधर पे, बाय मिस्टेक 3 लिख गया। ठीक है, तो यहाँ पर -1 टू द पावर 1 + 2 करने पे आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, ये भी कैसे फाइंड करेंगे, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम हाइड कर लो, ये भी मैं बता देता हूँ एक एलिमेंट और। 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, इनको हाइड करने के बाद है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा।
इस तरीके से हर एलिमेंट का एडजॉइंट निकालेंगे और लिख देंगे। जिसकी जो वैल्यू आई थी, जैसे पहले वाले की वैल्यू पहले के प्लेस पे लिख दी, दूसरे की वैल्यू दूसरे के प्लेस पे लिख दी फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, और इस पूरे बने हुए मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने में रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और आपको ये वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। इस मैट्रिक्स के मिलने के बाद इसी को बोला जाता है एडजॉइंट, और इसको जब आप डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। ए इनवर्स मैट्रिक्स मिलने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन बी मैट्रिक्स के साथ करना है, जो राइट साइड में लिखा हुआ था इक्वेशंस के जो नंबर लिखे थे उनसे बना हुआ मैट्रिक्स है बी। इनको मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिलता है, और इसको कंपैरिजन करने पे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी, x1 y3 z5। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक रूट किसको बोलते हैं, आइगन वैल्यूज़ किसको बोलते हैं, ये आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। कोई मैट्रिक्स आपके पास में है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ए माइनस लेमडा आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है, ए माइनस लेमडा आई। जब आप लेमडा का मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो आएगा लेमडा ज़ीरो 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 लेमडा ज़ीरो 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 लेमडा, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखते हो कि डायगोनल एलिमेंट में से लेमडा सब्ट्रैक्ट हो गया। लेमडा एक वेरिएबल है। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको बता दूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की जगह लेमडा आ जाएगा, बाकी एलिमेंट आपके ज़ीरो हैं। जब सब्ट्रैक्ट करोगे इसको ए माइनस लेमडा आई तो डायगोनल एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट होगा लेमडा, दिखने में ऐसा मैट्रिक्स आएगा। अब आप ये कॉलम या रो ऑपरेशन लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ज़ीरो आ जाए, अंदर अंदर ज़ीरो आ जाते तो वो वाला पार्ट सॉल्व नहीं करना पड़ता इक्वेशन बनाते समय, डिटर्मिनेंट निकालते समय। ठीक है। और सिंप्लीफाई नहीं करते हो आप, डायरेक्ट भी डिटर्मिनेंट निकालते हो तब भी आपको डिटर्मिनेंट निकालने पे सेम इक्वेशन मिलेगी। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। ये एलिमेंट लिखा, इसको हाइड किया, इनको मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, फिर आपने सेकेंड एलिमेंट के ऊपर माइनस लगा के लिखते हैं, पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है। तो आप इसको भी डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे। सॉल्व करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिलती है, इस इक्वेशन को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे या तो कैलकुलेटर के थ्रू या फिर 10th 9th 10th में आपने रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, हिट एंड ट्रायल मेथड। आपने देखा कि सब में से लेमडा कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया। अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक को मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, मध्य पद विचलन जिसको बोलते हैं, तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो, या जिसको वो भी नहीं बनता तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगा देना, आपको इसके रूट मिल जाएंगे। ठीक है। तो 3 और 15 रूट मिलेंगे, आपने 3 लिख दिया 15 लिख दिया लेमडा माइनस करके, तो इस तरीके से आपको 3 फैक्टर मिल गए। इनको आइगन वैल्यूज़ बोला जाता है। और ये जो इक्वेशन